In the previous lecture, we have discussed questions of the geometric progression. Also, I have you given some of the questions for practice from of the GP, that is of the exercise. It is exercise number 9.3. Today we are discussing some more of the questions of the geometric progression. Let us see the example number 15. In example 15, find the sum of the sequence 7, 77, 777 and 7777 up to n terms. If we see, then generally these terms are not in GP, not in AP. Then how can we do it? There is a trick to do it. Now let us take let Sn is equal to 7 plus 77, 777 plus 7777 and so on up to n terms. Sum of n terms. Now these all are the multiples of 7. 1 plus 11, 111, 111, 1000, 111 and so on up to n terms. Now we have to multiply and divide by the 9 here. 7 upon 9, 9 plus 99, 999, 9999 up to n terms. In the place of 9, what you can write here? 10 minus 1, 100 minus 1, 1000 minus 1, then 10,000 minus 1 up to n terms. Okay? Now 7 upon 9, this is 10, 100 is 10 to the power 2, 1000 is 10 to the power 3, 10 to the power 4 is 10,000 and so on up to n terms. Now what about this 1? Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, n times we are taking this minus 1. So if we are taking minus 1 n times, it becomes minus n. जैसे 1 को ऐड करो 5 टाइम्स 1 को ऐड करोगे 5 होगा, 1 को ऐड करो 10 टाइम्स 10 होगा, ऐसे 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा? इट इज़ n. नाउ इट्स अ GP विद द कॉमन रेशियो 10 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1. सो क्या बन जाएगा यहाँ पर? A दैट इज 10 r to the power n minus 1 upon r minus 1 and this is minus n. 7 upon 9, 10 to the power n minus 1 upon 9 minus n. इसको यहीं छोड़ दें और सॉल्व करने कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है. अदरवाइज आंसर इज कंप्लीट हियर. लिख सकते हो 7, 10, 10 टू द पावर n minus 1 minus 9n upon 81. ठीक है, क्लियर. नाउ कंटिन्यूइंग द टॉपिक, एग्जाम्पल नंबर 16. अगर देखें यहाँ पर तो क्या गिवन है? A person has 2 parents, 4 grandparents, 8 great grandparents and so on. Find the number of his ancestors during the 10th generation preceding his own. अपने से पिछली 10 जनरेशन तक के कितने एंसेस्टर्स होंगे वो हमें फॉर्म में फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्या दिया? सीक्वेंस ये है 2, 4, 8. इट्स फॉर्म्स आर GP. यहाँ पर A क्या आ रहा है? A is here 2. Then what is R? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज अगेन 2. 10th जनरेशन तक का काउस है, टोटल एंसेस्टर्स कितने होंगे? तो फॉर्मूले का लगाएंगे. सिंस Sn होता है A r टू द पावर n minus 1 upon r minus 1 बिकॉज here the value of r is greater than 1. So therefore ancestor preceding 10 जनरेशन का उसने तो S10 क्या बनेगा? A r to the power 10 minus 1 upon r minus 1. A is here 2 to the power 10 minus 1 upon 2 minus 1. 2 1000, 24 minus 1 upon 1, 1023, that is 2046 are total their ancestors preceding the 10th generation. चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड. सो ज्योमेट्रिक मीन पर देखें तो क्या आएगा आप? इन एग्जाम्पल 17, insert 3 numbers between 1 and 20 to 56. Let 3 numbers between 1
and 256 are, say, G1, G2 and G3. Therefore 3, G1, G2, G3 and 256, they all are in AP. ये कैसे होंगे? सब AP में हो जाएंगे, ठीक है। और सॉरी, GP। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म क्या है 3 और फिफ्थ टर्म क्या आ रही है यहाँ पर, दैट इज 256। Therefore AR to the power 4 is 256। A कितना है 3, R to the power 4 256, R to the power 4 38, 24 it's 3 and 256 ना, एक मिनट बता रहा हूँ आपको, 3 नहीं था, मैंने गलत लिख लिया यहाँ पे, 1 था, इट इज़ 1। अब ठीक है, सो 256 आ गया। 256 क्या होता है 4 to the power 4, so R to the power 4 is 2 to the power 4, the value of R is 4। कॉमन रेशियो आ गया 3 नंबर, हम यहाँ से निकाल सकते हैं यार, 4 to the power 4। सो G1 दैट इज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, कहने को फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, पर क्या आ रही है हमारे पास सेकेंड टर्म, क्या आएगा AR। It's 2, it's 1 into 4. Now G2 is AR square, 1 into 4 to the square 16. G3 AR cube 1 into 4 to the power 3 is 64। तो ये 3 नंबर्स आ गए जिसके बीच में है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आगे आ रहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिलेटेड विद अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर मिक्स क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 देख सकते हैं। सी इन द एग्जाम्पल नंबर 18, if arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b are 10 and 8, arithmetic mean of a and b किसके इक्वल होता है, that is a plus b upon 2, that is single arithmetic mean, और किसके इक्वल दे रखा है, it is equal to 10। therefore a plus b upon 2 is equal to 10, or you can say a plus b is equal to 20। कॉल जस्ट फर्स्ट। और क्या गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कितना दिया हमारे को, दैट इज 8, तो ए बी कितना हो गया 64। और हमें सॉल्व करना है इसको। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, अगर ऐसा हो हमारे पास तो हम लेके चलते हैं, फॉर्मूला बना के चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर से रिलेटेड, क्या कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक्सपैंड कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसे करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। 2ab माइनस 4ab कितना होगा, माइनस 2ab। तो इट्स एन आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं जब सम ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन हो। तो यहाँ से हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इट विल बी दैन a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी एज 20 स्क्वायर, 4 इंटू 64, a माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज़ 400 माइनस 256, दैट इज 144। तो ए माइनस बी कितना आ गया, दैट इज 12। ए माइनस बी माइनस कितना आ गया, हम प्लस माइनस 12 लिख सकते हैं। कॉल इट थर्ड इक्वेशन। ओके, सॉल्व करते हैं इसको आगे। नाउ क्या आएगा, अगर हम ए लेके चलते हैं, इफ ए माइनस बी 12 लेते हैं तो बाय फर्स्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू, या ऐसे कह लेते हैं, सीधा ही कर लो, ए माइनस बी प्लस 12 लेके चलते हैं हम। तो इसका मतलब वाई इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 12 प्लस बी बाय फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस बी इज इक्वल टू 20, 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4। और अगर हम देन a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। और अगर हम ये लेके चलते हैं कि इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12,
तो a इज इक्वल टू -12 प्लस बी, तब फर्स्ट से क्या आ जाएगा -12 प्लस बी इज इक्वल टू 20, 2b इज इक्वल टू 32, b इज 16, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी जाएगी 12 प्लस 16, 28 तो नहीं हो सकती है। b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 32, b 16 हो गया। ओके, तो ये तो 16 और 28 तो नहीं सेट बैठेगा हमारे पास, 16 4 आना चाहिए था, 4 एंड 16 था ना यहाँ पर। a इज 12 प्लस बी, 12 प्लस बी हमने रखा, फिर a माइनस बी -12 है, -12 प्लस बी, तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं -12 प्लस बी इन द प्लेस ऑफ a, और ये 20 ही है हमारे पास, तो 2b इज इक्वल टू 32 दैट इज 16 रख के चलते हैं हम b की वैल्यू, तो 28 कैसे आ गया, तो गलत हो रहा है यहाँ पर, अभी बताता हूँ आपको। तो a की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से -12 प्लस 16 दैट इज 4, तो नंबर्स वही दो आएंगे 4, 16 या 16, 4, देयर 2 नंबर्स आर 16 एंड 4 और 4 एंड 16। ठीक है, एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमारे को, जस्ट गिवन कि 5th, 8th एंड 11 टर्म्स ऑफ GPR PQ एंड S शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS हमें शो करना है। तो ये मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ GPBA एंड कॉमन रेशियो भी R गिवन है हमारे को, 5th टर्म P, 5th टर्म, देन 8th टर्म Q, फिर क्या गिवन है 11th टर्म S, तो ये बनेगा AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू P, कॉल इट एज फर्स्ट, AR टू द पावर 7 इज इक्वल टू Q, कॉल इट एज सेकेंड, AR टू द पावर 10 एज S, कॉल इट एज थर्ड। क्या प्रूव करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS हमें यहाँ पर शो करना। टेक द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लेते हैं, Q स्क्वायर PS लेंगे, P की वैल्यू क्या है यहाँ पर दैट इज AR टू द पावर 4, S क्या है यहाँ पे AR टू द पावर 10, A स्क्वायर R टू द पावर 14 मीन्स AR टू द पावर 7 का होल स्क्वायर हो गया, और AR टू द पावर 7 होल स्क्वायर किसके इक्वल है Q, दैट्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पहले 6 देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, गिवन है कि सिंस -2/7x -72 आर इन GP, ये 3 टर्म्स GP में है। जब GP में है तो कॉमन रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा, which implies second term divided by first term and third term divided by second term. So x square is equal to -7/2 minus 2/7. X square is equal to 1, तो वैल्यू ऑफ x इज +-1। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन द क्वेश्चन नंबर 11 इवेलुएट समेशन k is equal to 1 to 11, 2 plus 3 to the power k। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कहाँ से कहाँ तक हैं, फ्रॉम 1 to 11, 11 टर्म्स का सम है, हमें निकालना है यहाँ पर। तो क्या आएगा 2 plus 3 to the power 1, 2 plus 3 to the power 2, 2 plus 3 to the power 3, और लास्ट में क्या आएगा 2 plus 3 to the power 11। मतलब टोटल हमारे पास 11 टर्म्स हैं, और हम 2 को ऐड करते हैं, सेपरेट ले लेते हैं, कितनी टाइम्स ऐड होगा 2, 11 टाइम्स। सो 2 plus 2 plus 2
एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स हैं। सेम यहाँ ये 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 एंड सो ऑन अप टू 3 to the power 11। 2 को 11 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, क्या बन गया 22। ये जीपी बन गया। कॉमन रेशियो क्या आ रही है इसमें 3 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या लिखेंगे ए आर टू द पावर n माइनस 1। ए क्या है यहाँ पर 3, आर 3 to the power n 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये 22, 3 to the power 11 माइनस 1 अपॉन 2, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस मैं आपको 12 तक मैंने कल कहा था, वैसे आप लोगों को बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए थे 12 तक। आगे जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ी इजीली हो जाएगा, एग्जांपल हमने किया था अभी, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी हैं जो मैं डिस्कस करूँगा, बट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इसको समझिए, इतने क्वेश्चन को अच्छी तरह कीजिए। काम देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ आपको, लेकिन उसको साथ साथ कीजिए। ठीक है, अपने सारे टॉपिक को क्लियर करके चलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।